Hello students, now we discuss the book works of chapter first and then we discuss question answers. Okay, let's start. First we discuss word meaning. Royal means Shahi, physicians, चिकित्सक, tail, कीला, bald-headed, गंजा, court jester, विदूषक, overjoyed, अत्यधिक खुश, bump into, टकरा जाना, to prevent means स्थिर. Take the correct option. The princess name was, क्या नाम था princess का? The princess name was Shreya. The princess wanted the, क्या चाहती थी princess? Moon. The princess wanted the moon. The moon is there miles away and bigger than the room, said the minister. मिनिस्टर ने क्या कहा कि मून कितना दूर है यहाँ से? 35,000 माइल. क्या कहा कि मून यहाँ से 35 मील्स की दूरी पर है. This was the bald-headed sighted man with a pencil behind his ear. कौन था जो गंजा था और जो अपने पेंसिल को अपने कान के पीछे रखता था? कौन था वो? रॉयल मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स. The princess was very happy to see the dress before her. Princess बहुत खुश थी. किसको देख के खुश थी? कोर्ट जेस्टर को. Fill in the blanks. Shreya, who was just a 10-year-old, fell ill and took to bed. श्रेया थी जो 10 साल की थी और जो बीमार पड़ गई थी. Royal physician was worried and sent for the king. Royal physician था, चिंतित था. The king got angry and asked the minister to leave the room at once. King क्या हुआ था? गुस्सा हो गया था और उसने मिनिस्टर से बोला था कि वो अभी रूम को छोड़कर चला जाए. Shining in her hand was the golden moon. उसके हाथों में क्या चमक रहा था? Golden moon that the court jester had got. जो court jester ने उसे दिया था. किसके हाथों में चमक रहा था? श्रेया के हाथों में. The court jester asked the princess how the moon could be shining in the sky. Court jester उससे पूछता है कि कैसे चंद्रमा आकाश में कैसे चमक रहा है. Write T for true and F for false. The princess fell in. True or false? True. The princess wanted to get a doll. क्या वो डॉल को पाना चाहती थी या मून को? So it is false. According to the minister, the moon was made of copper. मिनिस्टर के अनुसार मून जो था वो किसका बना हुआ था? कॉपर का बना हुआ था. ट्रू. According to the royal mathematician, the moon was round and flat like a coin. मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग जो मून था वो कैसा था? राउंड था और फ्लैट था. कैसा? लाइक अ कॉइन. The court jester got the princess the real moon. जो court jester था उसने princess को real moon ला के दिया था? No. The princess fell ill after knowing her moon to be a false one. क्या प्रिंसेस बीमार पड़ गई जब उसे पता चला कि उसका जो मून है वो रियल नहीं है? फॉल्स. वो बीमार नहीं पड़ी थी. Who said the following statements and to whom? किसने किसको कहा ये बताना है. What has happened to you, my dear daughters? तुम्हें क्या हुआ है मेरी प्यारी बेटी? किसने कहा था? किंग ने कहा था. Said to किससे कहा था? श्रेया से. If I get the moon, I will be well again. अगर मुझे मून मिल जाता है तो मैं फिर से अच्छी हो जाऊंगी. किसने कहा? प्रिंसेस ने. किससे? राजा से. The moon is 35 miles away and it is bigger than the room. मून यहाँ से 35,000 मील्स की दूरी पर है और जो रूम से भी बड़ा है. ये किसने कहा था? Said by minister. किसको कहा था? राजा को. It is round and flat like a coin, said by mathematician said to king. किसने कहा था कि मून राउंड है और एक सिक्के के जैसा फ्लैट है? मैथमेटिशियन ने कहा था राजा से.
The king is how big the princess. The thing is how big the princess thinks it is and how far away. चीज कितनी बड़ी है, प्रिंसेस ये सोचना बनता है कि चीज कितनी बड़ी और यहाँ से कितनी दूर है। ये सब किसने कहा था? कोर्ट जेस्टर ने कहा था राजा से। We can set off fireworks in the garden every night. हम डेली रात को फायरवर्क्स पटाखे लगाएंगे रात में। ये किसने कहा था? मैथमेटिशियन ने कहा था। किससे कहा था? किंग से कहा था। Now we discuss the questions answer. Why did Princess Shreya fall ill? Princess Shreya बीमार क्यों पड़ गई? Because she wanted moon above. वो क्या चाहती थी? जो ऊपर चंद्रमा है वो उसे मिल जाए, इसलिए वो बीमार पड़ गई। Whom did the king call first of all to get the moon? राजा ने सबसे पहले किसे बुलाया? किस लिए? कि वो उसे ये कह सके कि चंद्रमा को लेके आओ। ये कहने के लिए राजा ने किसे बुलाया सबसे पहले? द किंग कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर टू गेट द मून। किसको बुलाया? प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। What did the royal magician say about the moon? रॉयल मैजिशियन ने क्या कहा मून के बारे में? रॉयल मैजिशियन सेड nobody can get the moon. रॉयल मैजिशियन ने कहा कि कोई भी चंद्रमा को नहीं ला सकता। It is 1,50,000 miles away. ये 1,50,000 मील की दूरी पर है। And is made of green cheese. एक ग्रीन चीज से बना हुआ है। It is twice as big as this place. वो इस महल से भी दोगुना बड़ा है। Next question. How did the court jester get the moon to the princess? कोर्ट जेस्टर कैसे प्रिंसेस के लिए मून लेके आता है? He went to the royal goldsmith. वो कहाँ जाता है? शाही सुनार के पास जाता है। And asked him to make a tiny golden moon just a little smaller than the thumbnail of the princess. और उसे क्या कहता है कि वो एक छोटा सा मून के जैसा, मून की शेप में एक छोटा सा पेंडेंट बनाए जो उसकी थंबनेल से भी छोटा, अंगूठे के नाखून से भी छोटा हो। Then he asked him to string it on a golden chain. तब उससे कहता है कि वो इसे एक स्ट्रिंग, गोल्डन चेन में स्ट्रिंग कर दे, उसे गोल्डन चेन में लटका दे, ताकि so that the princess could wear it round her neck. ताकि प्रिंसेस इसे अपने गले में पहन सके। What did the royal magician say about covering the moon? रॉयल मैजिशियन ने क्या कहा मून को ढकने के बारे में? जब उसने राजा ने पूछा था कि कहीं प्रिंसेस मून को देख ना ले, उसके लिए, उसको ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए क्या कहा था रॉयल मैजिशियन ने? रॉयल मैजिशियन सेड आई नो व्हाट वी कैन डू। मैं जानता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। वी कैन स्ट्रेच सम ब्लैक वेलवेट गार्डन्स लाइक अ सर्कल टेंट। हम क्या कर सकते हैं? मखमली बगीचे जो एक सर्कस के टेंट की तरह है, उसे हम खींच सकते हैं ताकि प्रिंसेस को वो मून ही दिखाई ना दे। What did the princess say about the moon at least? प्रिंसेस क्या कहती है चंद्रमा के बारे में? लास्ट में प्रिंसेस क्या कहती है? प्रिंसेस said, when I lose a teeth, a new one grows in its place. प्रिंसेस कहती है जब भी मेरा कोई दांत टूटता है, जब मैं किसी दांत को खोती हूँ, उसकी जगह पर एक नया दांत उगाता है। When the royal gardener cuts the flowers in the garden, जब भी रॉयल गार्डनर किसी फ्लावर्स को बगीचे में काटता है, अदर वंस कम टू टेक देयर प्लेस, दूसरा उसकी जगह पर आ जाता है। सो इज द केस विद द मून। तो यही सब मून के साथ भी हुआ है। आप उसे मेरे लिए ले आए हैं तो उसकी जगह पर दूसरा चंद्रमा चमक रहा है। फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन विच मीन्स। जो वर्ड्स फ्रेजेस दिए गए हैं इनका मतलब बताना है। इन द सर्विस ऑफ अ किंग, राजा की सेवा में कौन रहते हैं? रॉयल। उन्हें क्या बोलते हैं? रॉयल, शाही। हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द टॉप ऑफ द हेड, बहुत कम और ये बिल्कुल भी जिसके सर पर बाल ना हो उसे क्या कहेंगे? बाल्ड हेडेड, गंजा। अ प्रोफेशनल क्लोन इन अ मेडिवल कोर्ट, दरबार में प्रोफेशनल क्लोन को क्या कहते हैं? कोर्ट जेस्टर, विदूषक। फील्ड विद ग्रेट जॉय, खुशी से भर जाना, उसको क्या कहते हैं? ओवरजॉयड। To hit something by accident when you are moving, जब आप चल रहे होते तो किसी चीज से टकरा जाते हैं उसे क्या कहते हैं? Bump into।
A display of colored lights and loud noises. A display of colored lights and loud noises. Colored lights जो चमकदार लाइट्स होती हैं, और शोर उसे क्या कहते हैं हम? किसी चीज का प्रदर्शन जब लाइटें चमकती हैं, शोर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? फायरवर्क्स, पटाखे। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable articles in the following sentences. Where no articles is necessary, put across. आर्टिकल्स भरने हैं, जहां पर आर्टिकल्स की जगह नहीं है वहां पर क्रॉस कर देना है। अमृतसर इज अ बिग सिटी। अमृतसर सिटी का नाम है, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। हॉर्स की पूरी हॉर्स की कास्ट के लिए बोला गया है, तो वी यूज द। यूजफुल, यूजफुल, यूज में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सो वी यूज ए। नेक्स्ट है, देश कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास नाम है, सो उससे पहले द ए एन का यूज नहीं होगा। बट शेक्सपियर भी यूज है, लेकिन यहाँ पर उसकी एडमायरेशन की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है कालिदास की, कि वो इंडिया का शेक्सपियर है, तो वी यूज द। एन ऑनेस्ट मैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ऑनेस्ट क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट हम जब बोलते हैं तो साउंड किसकी आती है? वोवल की साउंड आ रही है, सो वी यूज एन। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वी यूज द। मैन इज अ सोशल एंड द मैन किस चीज के बारे में बताया गया है? एक आदमी के लिए बताया गया है, सो हम यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। सोशल एनिमल, सोशल कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, सो वी यूज अ। द बाइबल इज अ सेक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस कास्ट है, किसी कास्ट से पहले वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स। Thus mankind should love the nature. Mankind कोई definite indefinite नहीं है, so we don't use any articles. How beautiful the stars. आपको पता है यूनिवर्सल से the moon, the sun, the stars we use before them the. So how beautiful the stars look at night. Okay students, now your chapter is finished. Learn and revise carefully.